Hello students, welcome back to the Temperature Physics classes. Today I am delivering third lecture on work, power and energy. मैंने दो लेक्चर दिए वर्क पावर एनर्जी में, वर्क पावर एंड एनर्जी में. ये मेरा तीसरा लेक्चर है. पहले लेक्चर मैंने वर्क आपको बताया क्या होता है. दूसरे लेक्चर में हमने क्या किया, वो what we did in the second lecture. In second lecture we found how to calculate the work in different cases. And yes, I remember. In second lecture, we did conservative and non-conservative force. I recommend all the students to watch those lectures and see what is conservative and non-conservative force. This is my third lecture. In third lecture, I will explain you what is work energy theorem. Work energy theorem is most important concept in whole of physics. Whichever part of physics you go, there is work energy theorem application. It is my recommendation that you watch this lecture. What is work energy theorem and how it is used in various cases. I have an experience of using it everywhere in physics. So let us start with point number one. What is work energy theorem? Work energy theorem means it's a simple thing, but it needs a little bit of respect. I need to prove it. In two cases, I will pick up constant force, I will prove it. Then I will pick up variable force and I will prove it, because it is such a short statement, but it has so wide applications. Therefore, it needs some respect. Means I will derive it. I will prove it in some cases. Okay. Now, what is work energy theorem? Simple statement. Simple statement. Work done on an object by all the forces. All means all. All means conservative forces, gravitational force, non-conservative force, frictional force, nuclear force, whichever force you talk about. Work done by all the forces. I stress here all means all, because sometimes you get confused. Work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy of that object. That is all. Work done by all the forces is equal to change in kinetic energy. Means final kinetic energy minus initial kinetic energy. That is it. Work done by all the forces, may be conservative, may be non-conservative, on an object appears in that object as the change in kinetic energy. ठीक है, if negative work is done on an object, that means the change in kinetic energy will be negative. If positive work is done on the object by all together forces, by all the net forces or all the forces, the work done will be there will be increase in kinetic energy. If positive work is done by all the forces together. So इसको लिखना, मैं लिखूंगा ऐसे, work done is equal to change in kinetic energy. Kinetic energy. मगर this is work done by all the forces. All the forces. All the forces. Conservative plus non-conservative forces. ये है law. बस, that is all. तो अंग्रेजी में अगर लिखना चाहते हो आप, तो आप लिखो work energy theorem states that work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy. Okay, number one. Let me go to the point second. Second, how to prove it? Proof. In simple case, when force is constant. When force is constant, मैं इसको मतलब प्रूव करूंगा, because it has so wide applications. तो ये छोटा स्टेटमेंट जो है, इसके इतने वाइड एप्लीकेशंस है, और थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा. चलिए, ये है ऑब्जेक्ट, आपने इस पर फोर्स F एक्ट किया, मास इसका m है, और सपोज इसका इनिशियल वेलोसिटी u है. फोर्स देते when you apply force on an object, it gets accelerated.
and acceleration का मतलब it is velocity will change, and finally it is force acts up to this place and it travels a distance of s, that is also displacement, and its velocity becomes v, and you remove the force. Here you remove the force later. So force acts only for over this distance, or force acts over this time. So how to prove it? चलो पहले मुझे बताइए what is the work done. Everybody will say fs because force forward, displacement forward, दोनों का मल्टीप्लाई, इनके दरमियान एंगल 0 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वर्क डन निकला. Don't forget that work done is equal to f dot s, fs cos theta, और multiply that force and that displacement which are in the same direction. ये दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए मल्टीप्लाई ही करना पड़ा. अच्छा, तो चलो मैं यहां से इसी को खत्म करता हूं. वर्क डन इज इक्वल टू, हैव अ लुक, ये फोर्स है, इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज डिस्क्रीट एंड ma इज द फॉर्मूला फॉर दैट s. ठीक हो रहा है? ठीक. अच्छा समझो, वर्क डन इज इक्वल, इट इज m/2 इंटू 2as, ये भी चलेगा. चलो यहां पर लेता हूं मैं इसको. इट इज वर्क डन इज इक्वल टू, राइट, इट इज m/2 2as is equal to final velocity square minus initial velocity square. That's what you know, v square minus u square is equal to 2as, because force is acceleration is constant. It is 1/2 mv square minus 1/2 m u square. ये देखो आप, ये हुआ वर्क डन, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. हमने साबित कर दिया, वी प्रूव्ड इट. हमने साबित किया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जस्ट वर्क डन बाय द ओनली फोर्स हियर. यहां तो एक ही फोर्स है, अगर 2-4 फोर्स होते तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वुड हैव बीन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. मगर आई टुक ए सिंपल केस. ओके, लेट मी गो टू मोर कॉम्प्लेक्स. में नहीं कह सकता हूं, कोई चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है. थर्ड, चलो फिर से प्रूव करूंगा, मगर नाउ बाय वेरिएबल फोर्स. इफ द फोर्स इज वेरिएबल, is variable, if the force is variable. तो उस सूरत में वर्क डन किसके बराबर होता है? जो आप, मैंने पहले आपको बताया अपने जो लेक्चर में है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मैंने उसका फॉर्मूला भी आपको दिया है. तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स अगर आपको याद होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f डॉट dr r1 to r2. यह था फॉर्मूला हमारा. इसी को आगे ले जाते हैं, देखते हैं क्या होता है. वर्क डन इज इक्वल टू r1 to r2. ये f जो है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज dv by dt डॉट r dr. ठीक, फिलहाल तो ठीक है, बिकॉज इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन dr. अब dr को नीचे में dt कर दूंगा और मल्टीप्लाई भी dt कर दूंगा, ऐसे कुछ. तो ये dt और ये dt खत्म करो, और ये dr by dt जो है, ये तो वेलोसिटी हो गया, पहले भी कर सकते थे. अब इसी ये dt को यहां लाते, वो से हो जाता. अच्छा चलो, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, m बाहर, बिकॉज इट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. इट इज r1 r2 m, इट इज dv ओनली, डॉट होगा ये v, dr by dt इज वेलोसिटी, ये चीज. ठीक, सॉरी, m हमने बाहर लाया. अच्छा, अब ये चीज क्या है? ये चीज देखना पड़ेगा हमें, ये चीज क्या है. यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप जरा देखिए, ये चीज क्या है, dv डॉट v. अगर मैं आपको कहूंगा इट इज v dv, will you believe this? Will you easily believe this dv dot v is v dv? Or should I prove it? And once I prove it, then I will put dv dot v dv यहां पर. अगर मैं इसको साबित करूं तो फिर मैं dv डॉट v dv लिखूंगा यहां पर. चलो मैं साबित करता हूं पहले, ठीक है? ओके, पहले साबित ही करते हैं, फिर इसको आगे ले जाते हैं. नाउ
Okay, can I write v square is equal to v dot v? You have any objection to this? No, there should be no objection to this kind of an equation. V square is equal to v dot v, because v dot v is simply v square, स्केलर है. तो डिफरेंशिएट करो दोनों साइड से. 2v dv is equal to v ऐसे डॉट इसका डिफरेंशिएशन dv प्लस आगे वाला v ऐसे है इसका डिफरेंशिएशन dv. ठीक, इसका v डॉट डिफरेंशिएशन इसका, फिर इसका डिफरेंशिएशन डॉट v. तो इट इज 2v dv is equal to 2 times, क्योंकि v dot dv is dv dot v. By this definition, a dot b is equal to b dot a. Commutation property of dot product of vectors, commutation property. तो it is 2 times v dot dv. तो ये खत्म हुआ. तो वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, यही जो साबित करना था. लेकिन आप फिर याद भी रखो ये चीज, और लगे हाथ ये भी याद रखो, r डॉट डी आर इज इक्वल टू आर डी आर. एफ डॉट डी आर, अगर एफ रेडियल है, अगर फोर्स रेडियल है along the radial direction, एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एफ डी आर. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ये चीज. चलो एनीवे, यू जस्ट रिमेंबर इट, और इसको साबित करके आप इसको याद भी रखो. ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस चीज को याद रखोगे. बट लेट मी गो टू दैट ओरिजिनल इक्वेशन जहां से मुझे साबित करना था. वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m dv डॉट v. ओके, लेकिन यहां पर लिखना पड़ेगा ना v1 टू v2, बिकॉज नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर वेलोसिटी. तो r1 तो चला गया. तो अब इसको लिखो आगे जाकर के m v1 टू v2 v dv. अब ठीक है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा था, ये डॉट खत्म हो गया. हमने साबित किया, पहले ही आपने साबित किया. ठीक, तो वर्क डन जो है इट विल बी m, तो इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 अंडर लिमिट्स v1 टू v2 इज इक्वल टू m बाई 2. तो ये जो v है इसको पहले ये देना पड़ेगा वैल्यू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर. इट इज वर्क डन इज इक्वल टू 1 बाई 2 m v2 square minus 1 by 2 m v1 square. Finish. Answer. Work done is equal to change in kinetic energy. Final velocity, initial velocity. So it is work energy theorem. Work energy theorem. It is work energy theorem. चलो, let me use this work energy theorem in some simple cases. एक सिंपल केस में वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं यूज करूं. ठीक है, ओके, लेट मी टेक दिस. ओके, ये है एक इंक्लाइन है ये, और इसका ये एंगल थीटा है, और यहां से ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है, और ये हमारा ग्राउंड है. इसमें फ्रिक्शन भी समझो म्यू, और दिस बॉडी फॉल्स बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइन एंड फॉल्स हियर. इट विल हैव सम वेलोसिटी एंड इट विल गो फॉरवर्ड. देयर इज अ फ्रिक्शन इन द बैक, फ्रिक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन इट विल स्टॉप हियर. फाइनल वेलोसिटी is 0 and initial velocity is also 0. A body is just released here. It falls, there's a frictionless surface, and it falls and reaches here. But here it will have some velocity and it will go forward. क्योंकि पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स है, बैकवर्ड, बिकॉज ऑब्जेक्ट और सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन है, तो ये रब करके करके स्टॉप हो जाएगा. माय क्वेश्चन, अगर ये एल समझो ये और एच समझो, पहले हम एल में भी आंसर लाएंगे, फिर एच में भी, वो इजी है. तो मेरा क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव ऑन द ग्राउंड बिफोर इट स्टॉप्स. दैट इज ऑल. हाउ मच डिस्टेंस इट मूव्स ऑन द ग्राउंड बिफोर इट स्टॉप्स, ये क्वेश्चन है. शायद आप इसको कर सकते हैं अपने तरीके से, कि यहां आया तो यहां वेलोसिटी निकालोगे, फिर इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जो यहां पर वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, यहां फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से रिटार्डेशन निकालोगे,
रिटार्डेशन होगा फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू एम जी, mu times mg, mu times normal reaction by m, that will be mu g. Mu g will be retardation. Finally you can do it, possibly, if you have experience doing these questions. लेकिन मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करके इसको करूंगा. देखिए कैसे. यहां से जो फोर्स नीचे की ओर है दैट इज एम जी साइन थीटा. यह भी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन. यहां से भी फोर्स है एम जी कॉस थीटा. और लगे हाथ ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर है, होना भी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल देयर इज नो मोशन इन दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में कोई मोशन तो है नहीं, इसलिए ये होना चाहिए इसके बराबर. अच्छा, तो नाउ व्हाट इज आवर रूल? हमारा फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहां कौन सा ऑल है? एक तो ये फ्रिक्शन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है यहां से यहां तक. नॉर्मल रिएक्शन वर्क करेगा नहीं क्योंकि 90 बनाता है मोशन के साथ. एम जी कॉस थीटा भी काम नहीं करेगा. वैसे काम कैसे होगा? तो इनका नेट तो जीरो है. और अगर इनका थीटा अगर ये बराबर नहीं भी होते तब भी इनकी वजह से वर्क डन जीरो था, बिकॉज दे आर मेकिंग 90 विद द मोशन, 90 एंगल डिग्री विद द मोशन. तो ये काम करेगा. So work done by gravitational force plus work done by frictional force is equal to change in kinetic energy. ये है हमारा rule. What is work done by gravitational force? Positive, because motion is down and displacement is also down. It is mg sin theta into this यहाँ से यहाँ L plus what is work done by frictional force? That is frictional force, that is mu mg into this x distance. इसने कितना कवर किया. लेकिन ये वर्क डन नेगेटिव है. वजह फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट के आगे की ओर है. इस वजह से वर्क डन इज नेगेटिव. इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो. तो यहां से हमें x मिलेगा एम जी फिनिश ऑफ, बिकॉज राइट के साइड जीरो है. तो x जो है दैट इज L साइन थीटा बाय म्यू. अगर आप इसको राइट साइड में डाल देंगे, इफ यू पुट इट ऑन टू द राइट साइड यू विल गेट दिस इक्वेशन. सो x इज इक्वल टू कितना? L साइन थीटा. अगर देखा जाए ये L है, यहां से यहां L cos थीटा है. ये L है, ये L का कंपोनेंट L cos थीटा और ये L का कंपोनेंट L साइन थीटा. सो L साइन थीटा इज h फ्रॉम दिस ट्रायंगल, h by mu. दैट इज द आंसर. वन लाइनर. तो फायदा यहां ये है कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं. और अगर आपने अपने तरीके से किया यूजिंग ऑल द लॉज दैट यू नो, मे बी न्यूटन्स लॉ, मे बी सम अदर लॉ, आप यहां पहले यहां वेलोसिटी निकालोगे, फिर आगे जाकर के आप और एक इक्वेशन लगाकर आप यहां इसको स्टॉप करके निकाल सकते हो. आई डोंट से दैट यू कांट डू इट, यू कैन डू इट, बट इट इज अ वन लाइनर बाय दिस मेथड. फोर्थ पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, हमने पहले ही कहा कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस में यह है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन कंजर्वेटिव फील्ड्स. सो बट वी हैव नेवर प्रूव्ड इट, although it's a क्या इसको कहेंगे, it's a physical fact. You can physically or experimentally demonstrate that total mechanical energy in the gravitational field or electrostatic field remains constant. But let me do it using work energy theorem. We know, चलो mechanical energy कैसे constant? Why it is constant? Mechanical energy constant in conservative fields, FC, conservative fields. वो इसलिए, चलो मैं एक काम करता हूं, वही वर्क एनर्जी थ्योरम पहले लिखता हूं मैं. लेट मी राइट डाउन द वर्क एनर्जी थ्योरम. दैट इज K2 minus K1 change in kinetic energy is equal to what? Work done by all the forces. Work done by conservative force plus work done by non-conservative force. Work done by conservative force plus work done by non-conservative force. For conservative force alone, for conservative forces alone, for
conservative forces alone. We know K2 minus K1 is equal to WC. Equation दोनों के लिए valid है. But if we concentrate on the conservative force, let us see what happens. तो K2 minus K1 is equal to, ये what is work done by conservative force जो मैंने आपको पहले बताया है last lecture में, वो पूरा मैंने डिस्कस किया है. तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये वाला. ठीक, तो दैट मीन्स K2 माइनस K1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स U2 माइनस U1. ठीक, अच्छा, तो ये जो इट इज ओके, it is K2 minus K1 is equal to minus U2 plus U1. U2 को यहां लाइए, 2 वालों को एक साइड लीजिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स. 2 वालों को एक लेफ्ट साइड लीजिए और 1 वालों को वहां उस साइड लीजिए. What is this? K2 plus U2. It is mechanical energy because mechanical energy is sum of the two energies, kinetic energy plus potential energy. It is mechanical energy at position 2 is equal to mechanical energy at position 1. साबित हो गया. Done. So it is because of these things that the mechanical energy in conservative fields remains constant. लेकिन यहां से हम और एक चीज सीखते हैं. अगर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी साथ लाएंगे, क्या कोई ऐसा रूल है जो हमें हेल्प करेगा व्हेन द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आल्सो वर्क? This is good for the conservative fields because in conservative fields mechanical energy remains constant and we have proved it because K2 minus K1 is WC और WC का जो है मैं ये माइनस डेल्टा W लिख सका मैं. लेकिन कहीं जाकर मुझे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स का होगा तो वहां मैं नहीं लिख सकता. There I can't write work done by non conservative forces U2 minus U1 because non conservative force fields don't have such such relationship with change in potential energy. Of course potential energy डिफाइन ही नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए. ओके, लेट मी गेट समथिंग फॉर द नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स. मैं कुछ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के भी बारे में थोड़ा सा नॉलेज हासिल करना चाहता हूं. 5th पॉइंट, जैसे formula, I want to develop a formula for non-conservative fields. Suppose non-conservative fields are working in this system, so how should I try to solve such problems when non-conservative fields are also working, when non-conservative forces are also working? That I want to do. Have a look. तो पहली बात यह है कि मैं work done is equal to change in kinetic energy, work done by all the forces. चलो ऐसे कर दो, work done by all forces is equal to change in kinetic energy. ये बेस रूल है, change in kinetic energy. बेस रूल तो यही है. Work done by all the forces, work done by all the forces means work done by conservative force plus work done by non-conservative force. ठीक, work done by conservative force plus work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy, that is K2 final kinetic energy minus initial kinetic energy. ऐसे कुछ. ठीक, इस WC को आप लिख सकते हैं U2 माइनस, सॉरी पहले तो WC को वो लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला के हिसाब से जो इसका है, माइनस डेल्टा U WNC इज इक्वल टू K2 माइनस K1, ऐसे कुछ. राइट, नाउ अब क्या, अब यह कर दो आप माइनस U2 minus U1 is plus WNC work done by non-conservative force is equal to K2 minus K1. ये ठीक. अब इस चीज को वहां की ओर ले जाओ आप. इस चीज को
It is work done by non-conservative force is equal to K2 minus K1 प्लस U2 माइनस माइनस प्लस यहां होगा तो वहां माइनस U1 होगा. ठीक. इट इज वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू K2 प्लस U2 माइनस करके इन दो को माइनस कॉमन निकालकर अंदर रहेगा K1 प्लस U1. इट्स वेरी नाइस. It is something very good. Work done by non-conservative force is equal to mechanical energy at final position minus mechanical energy at initial position. This is a great formula. Means work done by non-conservative force in the given scenario or in the given case or in the given situation, work done by non-conservative forces is just equal to change in mechanical energy. जब mechanical energy में change होगा वो उसकी वजह यह है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ने काम किया है, और मैकेनिकल एनर्जी चेंज तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से तो होगा नहीं. तो नॉन कंजर्वेटिव वर्क में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां आपको आगे देखना पड़ेगा कि नॉन कंजर्वेटिव वर्क फोर्स ने कितना काम किया है. तो वो आप यूज कर सकते हैं कि इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी दोनों का डिफरेंस निकाला वर्क में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. मुझे याद है एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि ये अर्थ है और ये सैटेलाइट है यूं, और इस सैटेलाइट को पुश करके किसी रॉकेट की वजह से दूसरे ऑर्बिट में लाते हैं. यहां इसका वेलोसिटी ओके v1 है, यहां इसका वेलोसिटी v2 है. किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि हाउ मच वर्क इज डन इन पुशिंग दिस सैटेलाइट फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन. दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच अ स्टूडेंट आस्क्ड मी. And it had a long derivation in the book, in the solution set. He showed me that. ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व जब करता है सैटेलाइट, इसका मैकेनिकल एनर्जी कुछ होगा, यहां पर भी मैकेनिकल एनर्जी होगा. ठीक. ये मैकेनिकल एनर्जी निकालना है और वो इजी है. एक ही झटके में वो मैकेनिकल एनर्जी निकाला जा सकता है. टोटल एनर्जी दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 टाइम्स आर 2 टाइम्स ये आर है. तो ये ऑर्बिट भी दिया है, ये शायद 4r था. आप इसका मैकेनिकल एनर्जी निकालिए, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय 2 टाइम्स हाउ मेनी आवर्स 4r. इन दो का डिफरेंस निकालो तो हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट. फिनिश्ड. टोटल मैकेनिकल एनर्जी. How much is work done by the rocket in pushing the satellite from one orbit to another orbit? उसमें क्या करना है आपको, यहां मैकेनिकल एनर्जी टोटल क्या है और यहां क्या है, यहां ज्यादा होगा. आप कहेंगे नहीं ज्यादा कहां, तो वहां काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा. एंड पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ना ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. वो मैं आपको बताऊंगा जब ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो अच्छी तरह से होगा. यहां मैं जिम्नी आपको कहा एक बाय जस्ट स्टे थिंग इट इज कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आप ये यूज करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज जस्ट इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है, इनिशियल भी पता है, कहां से लाया कहां गया, दोनों का जब डिफरेंस निकाला आपने, दैट इज द वर्क डन बाय द रॉकेट लॉन्चर व्हेन इट लॉन्चेस फ्रॉम one orbit to another orbit. Okay, now let me do some problems on this. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हम करेंगे. जस्ट ए मिनट, देखते हैं क्या होगा इसका. यस, दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम ऑन दिस वर्क एनर्जी थ्योरम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. यह है पहला क्वेश्चन. ए ब्लॉक ऑफ मास m is equal to 2 kg is pushed up a rough inclined plane. Theta is equal to 30 degrees angle with initial velocity 10. The coefficient of friction between the block and the incline is 0.1. How far up the plane the block will go before stopping? ऐसे कुछ मैं आपको इसका फिगर दिखाऊंगा पहले. ऐसे और ऐसे हैं. ये इंक्लाइन प्लेन है
और ये इसका थीटा एंगल कितना है, 30 डिग्री का एंगल है। और आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां जो 2 kg का है, आपने इसको वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड। हमें देखना है कि कितना ऊपर जाकर के स्टॉप होगा, ये x निकालना है या l निकालना है, यहां स्टॉप हो जाना चाहिए, ये है क्वेश्चन। और फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दैट इज 0.1 म्यू के। ये कुछ चीजें दी है। पहले मुझे बताइए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, हाउ मच विल बी द फ्रिक्शन फोर्स, F दैट इज म्यू n। म्यू तो 0.1 है, और व्हाट इज n, नॉर्मल रिएक्शन, वो निकालना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन देखो, ये n है और यहां से mg cos थीटा l है ये। तो नॉर्मल रिएक्शन इस mg cos थीटा के बराबर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन तो है नहीं इस डायरेक्शन में। सो आई विल राइट म्यू 0.1 mg cos थीटा, या म्यू को साथ में ही रखो, लास्ट में हम सबस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस बिफोर इट स्टॉप्स। तो लगाएंगे क्या नाम है उसका, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल टू K2 minus K1। व्हाट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्स? एक तो ये फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की ओर, दूसरा ग्रेविटेशन फोर्स भी पीछे की ओर है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना पीछे की ओर है, mg sin थीटा, और फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, इतना, ये है फ्रिक्शनल फोर्स। सो व्हाट इज वर्क डन बाय both of them, that is mg sin थीटा इंटू l, यहां से यहां जो लेंथ है l, मगर नेगेटिव साइन, माइनस फ्रिक्शन फोर्स भी नेगेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स भी अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए वो भी नेगेटिव, दैट इज म्यू mg cos थीटा, ये वाला इंटू l, इसका भी लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वर्क डन निकालने के लिए, इज इक्वल टू व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 0। व्हाट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv²। ये है आपका फॉर्मूला, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक, तो अब आप इस l को निकालिए, इजी है। दिस l इज इक्वल टू, पहले m कैंसिल होगा, तो इसको उधर ले जाना है, ठीक, v²/2, दैट इज v² ऊपर और 2 नीचे, g बाहर, ये वाला g sin थीटा प्लस म्यू cos ऑफ थीटा। आंसर फिनिश। थीटा दिया हुआ है और v दिया है, और आंसर निकालिए इसी में। देखते हैं, पहला ऑप्शन है 4.2, दूसरा 5.1, 3.5, 6.0, इनमें से कोई ऑप्शन। v is 10 that you know, थीटा इज गिवन, म्यू इज गिवन 0.1, तो सारा कुछ आपके पास है, तो ये आपका फॉर्मूला है, आप इसको इस्तेमाल करके कर दो। ठीक, चलो, तो ये है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ओके। A force of 5 Newton acts on a body of this for 3 seconds। ये है एक बॉडी, इस पर फोर्स एक्ट करता है 5 न्यूटन का, और इसका 1 kg का मास है, और 3 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट होता है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स एंड इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हमें इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, को इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K2 minus K1 is equal to K2 only, because K1 is 0, is equal to work done by all the forces।
यानी कि जो वर्क का आंसर होगा वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी का भी आंसर होगा। ये सीधी सीधी बात है। K2 minus K1 is equal to K2 only because initial kinetic energy is 0 and work done by all the forces। यहाँ all कौन सा है? यहाँ 5 एक ही तो फोर्स है 5 न्यूटन का। तो पहले मुझे डिस्टेंस चाहिए, जरा डिस्टेंस निकालो। That is 1 by 2 at square, that is 1 by 2, what is A? That is F by m t square, that is S is equal to, because acceleration is F by m, that is 1 by 2, it is 5, mass is 1, t square is 3 seconds, that is 9, time is 3 seconds. Okay, that is S is equal to 45 by 2। चलिए S तो हो गया। Now what is work done? That is Fs, F is 5, F is 5, work S is what? 25 by नीचे क्या आया था 2। हाँ नहीं शायद कुछ गलत हुआ। ये क्या निकला था? S क्या निकला था? 1 by 2 at square, that is 1 by 2 A is 5 by 1, t square is 9, 45 by 2, 45 by 2, it is 5 20 by 2, it is 112.5। ये है joules, ये है आंसर। फर्स्ट इज द आंसर, फर्स्ट इज द आंसर। ओके, now let me go to the equation, question number 3rd। क्या है थर्ड क्वेश्चन? A 3 kg block slides on a frictionless surface and hits a spring with spring constant K is equal to 200 Newton per meter and compresses it by 0.3 meters before momentary stopping. What is the initial speed of the block? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है। ये स्प्रिंग है यहां पर जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है कितना? 200 न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। हाँ, न्यूटन पर मीटर। और यहां से एक ब्लॉक आ रहा है with initial velocity u, it hits the spring, it will hit the spring and will compress the spring like this, ऐसे। और कितना कंप्रेस किया स्प्रिंग को? इतना स्प्रिंग को कंप्रेस किया 0.3 मिलीमीटर से, शायद मीटर से। हाँ, हमें देखना है कि अगर इसने इसको इतना कंप्रेस किया, पहले इसका स्पीड क्या था? व्हाट वाज इट्स इनिशियल स्पीड? तो क्या करोगे? क्या लगाओगे? फॉर टोटल मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट, उसी हिसाब से करेंगे। लेट्स से टोटल मैग्नेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। क्या है यहां पर मैग्नेटिक एनर्जी? m1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी है 1 by 2 mu स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इसका 0 है। व्हाट इज m2? यहां पर जब कंप्रेस हुआ लास्ट में फाइनली, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 1 by 2 kx स्क्वायर है। अब इनको हमें इक्वेट करना पड़ेगा, इनको हमें इक्वेट करना ही पड़ेगा, तब जाकर अब हमें इनको इक्वेट करना पड़ेगा। तो जब हम इक्वेट करेंगे, दैट इज 1 by 2 mu स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 kx स्क्वायर। हो गया, 2 गेट्स कैंसल्ड, u इज इक्वल टू x रूट ऑफ k by m। x is 0.3, root k, what is k? Is 200 by m is 3। ओके, तो
ये 2 0 बाहर आकर के 1 0 करके नीचे बाय 3 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके √2/√3 दैट इज √6 दैट इज √6 अब खुद देखो किसके बराबर होता है और किसके नजदीक होगा। √6 ही आंसर है, इसको जाने दो, √6 ही आंसर है इसका। हो गया। चलिए थर्ड हो गया। फोर्थ क्वेश्चन A 1 kg particle moves under the action of a variable force where x is in meters. If the particle moves from x equal to 0 to x is equal to 2 meters, what's the change in kinetic energy? सीधे करूंगा मैं क्वेश्चन, हैव अ लुक था, उसको अच्छी तरह से देख लो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है ऐसे डायरेक्ट, work done by the force. So what's work done by the force? F dx from where to where? 0 to 2. 0 to 2, what is force? That's 4x dx. 4 बाहर, x का इंटीग्रेशन x square by 2. 0 to 2, that is 2x square. x को वैल्यू दे दो, that is 2 square minus 0. 4 joules. Answer B is the answer, 4 joules. Fifth question. Which of the following statements is true regarding work energy theorem? Fifth question. Work energy theorem के बारे में कौन सा statement correct है? कौन सा statement? It only valid for conservative forces. No, it is not only valid for conservative forces. It relates net force to change in acceleration. No, not again. It applies only to linear motion. No, it's a general law. It equates net work done by all the forces to the change in kinetic energy. Correct. D is correct answer. It equates net force. Net force. It equates net work done to the change in kinetic energy. To the change in kinetic energy. These were 5 questions which I have shown you on the board. You just do it many a times. And there's one more next lecture that will be uploaded just today. That concerns IIT level questions on work energy theorem. Don't miss that lecture, because that's very beneficial. Even for the NEET students, that is beneficial. Because once you do that, the NEET people will get elevated in understanding physics, and the physics paper will be cakewalk for them, and because they will be going ahead of the other students when they try to compete with the JEE students in physics. Thank you.